Good morning, dear students. Uh, Today I will discuss how to construct the predictive parsing table. We had this grammar which after modification becomes LL1 grammar. So this is the grammar that we will be taking for construction of predictive parsing table. And this is the algorithm for predictive parsing table. So let us first understand the algorithm of construction of the parsing table for predictive parser. Then we will be taking the example and live construction will be made. So grammar is input is the grammar itself, that this is the grammar will be input for us. And remember, grammar should be LL1, then otherwise parsing table construction will not be complete. I mean, it will have some ambiguity. So what are the steps of the grammar? For each production A producing alpha in G, that simply means we have to take each production and then apply these set of rules in each production. So what are the rules for each production? For each terminal A in first of alpha, so we have to compute first of this alpha, RHS of the production, first of alpha, and suppose if it is A, then parsing table will have an entry M capital A small a. M is the name of the parsing table. M is the name of the parsing table. It's a two-dimensional array, that's why two entries are there. So it's a location. Capital A is what? Capital A is the LHS of the production which we are considering, and A is the first of alpha, right? Next step is, if epsilon is in first of alpha, okay, then for each terminal B in follow of A. So we have to compute follow of A, and suppose follow of A is B, or if the follow of A has a number of symbols that you know follow and first you have already computed and seen in my previous video. So follow may have a number of symbols, so you can call it B1, B2 and B3, etc. Add, then what will you be doing? Add A alpha. This production is to be added to this location, M capital A small b. If there are number of B's, B1, B2, B3, so it will be M, like M A B1 production will be entered, M A B2 a production will be entered, like A producing alpha, it will be entered, and likewise. Next is, if epsilon is in first of alpha and dollar is in follow of A. You know, in follow computation, dollar is always in follow of S, that is a start symbol. So there will be only one entry in that. So add A producing alpha to M capital A dollar, and all other entries which are not filled are blank or error entries. So this I will be explaining later. What is this error entry? So let us start, and I am just putting this predictive parsing table algorithm here so that it can be visible parallelly to you. So this is the grammar, you know, that we will be taking. This, for this grammar we have constructed first and follow sets. All these non-terminals, these are the first and these are the follows. These will be used in the parsing table, and this is the parsing table. So first of all you make a structure of the parsing table like this. What is the how the parsing table will look like? On this side of this two-dimensional table, this parsing table is known as M. You have all non-terminals, so E, T, F, E dash, T dash. These are the non-terminals in our production. So we have entered these non-terminals on this side, and on the horizontal side of the table, all terminals that appear in this grammar. You see, in this grammar, what are the terminal symbols? Plus, star, left bracket, right bracket, ID, and dollar as the end marker. So I am just putting plus, then star, then left bracket, right bracket, ID, and dollar is always placed as the end marker. So for any parser, dollar is an important symbol that gives you the end of a string or end of a stack or whatever. So this is the parsing table structure that we have computed, right? Now we have to make entries into this table.
what type of entries would be there? The productions, because this is a top down parser. So unless a bottom up parser in which either the less than, greater than or relational symbols are entered, or shift or reduce actions are indicated in bottom up parser. But in top down parser, since it starts from a start symbol to string, we will be having only productions in these locations. So let us see in which locations productions can be entered. So how will we be applying the grammar, this algorithm? You see, we will be applying the grammar step by step for each production A producing alpha. So for each production means, let us take the first production. The first production is E producing T E dash, right? So we are taking this production E producing T E dash. E producing T E dash. This is the first production we have taken. Now you see, for each terminal A in first of अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या है हमारे पास, ये है अल्फ़ा. तो टर्मिनल A इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, हमको पहले फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ क्या निकालना है, टी ई डैश निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ टी ई डैश कैसे निकलेगा, कंपोजिट का है तो फर्स्ट का जो थर्ड रूल है वो अप्लाई होगा. इसके लिए फर्स्ट ऑफ टी निकालना होगा. अगर फर्स्ट ऑफ टी में एप्सिलॉन है तो फर्स्ट ऑफ ई डैश भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. ना यू सी, फर्स्ट ऑफ टी लेफ्ट ब्रैकेट एंड आई डी, तो नो एप्सिलॉन, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ टी इज़ टी ई डैश इज़ लेफ्ट ब्रैकेट एंड आई डी. ये हो गया ना. तो अब ये अल्फ़ा, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा मिल गया. अब ये देखो आप रूल है, क्या कह रहा है ये, फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा. कितने टर्मिनल्स निकले फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में, 2, ये और ये, ठीक है, निकल गए. तो ऐड ए अल्फ़ा टू एम ए ए. पार्सिंग टेबल की इन लोकेशंस पे हमको प्रोडक्शन ऐड करना है. कौन सी लोकेशन है, एम, कैपिटल ए की जगह है हमारा, ये कैपिटल ए है, तो ई लेफ्ट ब्रैकेट, इस लोकेशन पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कौन सा है जो हम पहला ले चुके हैं, ये है ए अल्फ़ा की जगह. तो ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, और एक लोकेशन और उसमें भी एंट्री आएगी ई, क्योंकि ये 2 सिंबल्स हैं, आई डी, इसमें कौन सी एंट्री आएगी, ई सेम प्रोड्यूसिंग टी ई डैश. अब इन 2 को एंट्री कर लेते हैं, ये 2 लोकेशन में. ई लेफ्ट पैरेंथेसिस, ई लेफ्ट पैरेंथेसिस में क्या आएगा, ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, राइट. और दूसरा क्या हो गया, ई प्रोड्यूसिंग, ई आई डी में भी सेम आ जाएगा, ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश. ओके, एक एंट्री हो गई. अभी पहला प्रोडक्शन चल रहा है, अगले स्टेप पे आते हैं. देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा. फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, एप्सिलॉन नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा थर्ड वाला. अगले पे आते हैं, एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा. अगेन ये भी नहीं लगेगा, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में नहीं है. फिर आगे आते हैं, अब वापस से रिपीट करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्शन पे हम आते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है हमारा, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्शन पे आते हैं. तो नेक्स्ट प्रोडक्शन है हमारा ई डैश प्रोड्यूसिंग प्लस टी ई डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन. 2 प्रोडक्शन है. तो अब इस पर अब देखते हैं. अब इस पर हम ग्रामर, ये पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन का रूल लगाते हैं. फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, फिर से फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा निकालना. ये पूरा अल्फ़ा है, ये है ए और ये है अल्फ़ा. तो फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ क्या निकालना है, प्लस टी ई डैश निकालना है. आप इजीली कह सकते हो प्लस टी, ये इसका फर्स्ट केवल होगा प्लस, क्योंकि ये इन दोनों के फर्स्ट ऐड नहीं होंगे, बिकॉज प्लस इज़ अ टर्मिनल, तो इसका फर्स्ट प्लस ही होता है. नो एप्सिलॉन मीन्स ये इनके यूनियन नहीं होंगे, ठीक है. तो अब ये देखो, ये ए की जगह आ गया. तो जस्ट पहले जैसे किया था, पार्सिंग टेबल की में एंट्री क्या आएगी, एम ई डैश कॉमा प्लस में कौन सी एंट्री आएगी, ई डैश प्रोड्यूसिंग प्लस टी ई डैश. ये है ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा की जगह. तो इस वाली लोकेशन में ये एंट्री कर दो, एम ई डैश प्लस में, ई डैश ये है और देखो प्लस ये है. तो क्या एंट्री आएगी इसमें, ई डैश प्रोड्यूसिंग प्लस टी ई डैश. एक और एंट्री आ गई, राइट. चलते हैं अगले स्टेप पे. अभी हम इसी वाले प्रोडक्शन पे चल रहे हैं.
इफ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, फर्स्ट ऑफ अल्फा में एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है, तो ये रूल नहीं लग पाएगा और ये रूल भी नहीं लगेगा क्योंकि एप्सिलॉन फर्स्ट ऑफ अल्फा में नहीं है। फिर अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला मतलब अगला प्रोडक्शन पे आते हैं। अगला प्रोडक्शन हमारा ये एक और प्रोडक्शन बच रहा है अभी, इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, राइट। अब इसको हम फिर से लगाते हैं। फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, अब ये कोई टर्मिनल, ये तो फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा क्या है, इस पर ईड है, ये एप्सिलॉन ही होगा, तो एप्सिलॉन है, तो इस पर हम लगा नहीं पाएंगे। अब इस पर हम आगे देखते हैं ये वाला, इफ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ये आप देखो पहला सेकेंड वाला रूल अगर आप फिर से देखना चाहो तो टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारे ये है एप्सिलॉन, तो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन होगा और एप्सिलॉन टर्मिनल नहीं है, एप्सिलॉन इज ए यूनिक सिंबल, टर्मिनल नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। तो थर्ड रूल पे आते हैं, इफ़ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, तो फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा एप्सिलॉन खुद ही है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। देन फॉर ईच टर्मिनल बी इन फॉलो ऑफ ए, अब हमको फॉलो ऑफ ए निकालना है। ए की जगह हमारा क्या है, ये है ए, तो फॉलो ऑफ ई डैश, राइट, ये जो होगा ये बी की जगह होगा। तो फॉलो ऑफ ई डैश अब आप देखो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है, फॉलो ऑफ ई डैश, ये है राइट पैरेंथेसिस एंड डॉलर, राइट पैरेंथेसिस एंड डॉलर, ये निकल रखा है। तो ये बी की जगह आ गया, इसको हम B1 और B2 मान लेते हैं। तो अब देखो पार्सिंग टेबल में दो एंट्री आएगी, ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, ये एंट्री जाएगी जो प्रोडक्शन है हमारा वो किस लोकेशन में, एम ए स्मॉल बी, यानी कि एम ए की जगह है ई डैश और स्मॉल बी की जगह है एक तो क्लोजिंग ब्रैकेट और दूसरी लोकेशन हो गई इस ई डैश डॉलर। इन दोनों लोकेशन में कौन सी जाएगी एंट्री, ये प्रोडक्शन ई डैश प्रोड्यूसिंग, जिस प्रोडक्शन को हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, इन दोनों लोकेशन में ई डैश क्लोजिंग ब्रैकेट, ई डैश क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आ गया आपका ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, ये आ गया। और ई डैश डॉलर में भी सेम चली जाएगी, ई डैश डॉलर में भी चली जाएगी, ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगला आते हैं हम टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश, नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारा। अब इस प्रोडक्शन में भी हम फिर से पार्सिंग टेबल का जो है रूल 2 अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, तो फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश, राइट। तो फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश निकालना है हमको, तो फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश मीन्स फर्स्ट ऑफ, पहले एफ देख लेते हैं क्या है फर्स्ट ऑफ एफ, तो फर्स्ट ऑफ एफ है ओपनिंग एंड आईडी, यानी कि फर्स्ट ऑफ एफ टी डैश क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ओपनिंग एंड आईडी, फर्स्ट ऑफ टी डैश उसमें ऐड नहीं होगा, वही एप्सिलॉन वाला इशू। तो अब देखो ये ए की जगह आ गया, तो अब हमको क्या ऐड करना है पार्सिंग टेबल में, एम कैपिटल ए की जगह आ गया टी और ओपनिंग ब्रैकेट दो लोकेशन में ऐड होगा और टी और आईडी इन दो लोकेशन में क्या ऐड होगा, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश और दूसरे में भी टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश। तो टी ओपनिंग ब्रैकेट, आप देखो पार्सिंग टेबल में टी ओपनिंग ब्रैकेट में टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश और टी आईडी में भी आ जाएगा टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश, ठीक है, ये दो आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रोडक्शन जो है अभी इस वाले पे अप्लाई नहीं होगा उसी प्रीवियस रूल के हिसाब से, और इस पे भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन नहीं है फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में। फिर हम अब वापस आते हैं, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारा क्या है, टी डैश प्रोड्यूसिंग स्टार एफ टी डैश और टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो पहले ये वाला कंसीडर करते हैं, ये ए हो गया और ये पूरा हमारा अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा यानी कि फर्स्ट ऑफ स्टार एफ टी डैश।
अब इसका फर्स्ट जो है स्टार होगा, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो अब आप समझ चुके होंगे, आगे के काउंट नहीं होंगे। तो अब देखो पार्सिंग टेबल में क्या एंट्री जाएगी, एम टी डैश स्टार में कौन सी एंट्री जाएगी, टी डैश प्रोड्यूसिंग स्टार एफ टी डैश। ठीक है, टी डैश प्रोड्यूसिंग स्टार एफ टी डैश, टी डैश स्टार में। अब आप देखो टी डैश और स्टार में है ना, क्या जाएगी एंट्री, टी डैश स्टार में, यहाँ पे एंट्री जाएगी, क्या जाएगी, टी डैश प्रोड्यूसिंग स्टार एफ टी डैश, एफ टी डैश। ठीक है, ये एंट्री चली गई। अब एक प्रोडक्शन और है, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन ऑल्सो, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो अभी आपने ये वाला किया हुआ है, ई डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो उस तरीके से अब हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा फॉलो ऑफ, अगला रूल लगेगा पार्सिंग टेबल का, रूल 3 आप देखो लगेगा यहाँ पे। तो अब आप देखो, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, फॉलो ऑफ हमको क्या निकालना है, टी डैश, फॉलो ऑफ टी डैश हमने निकाला हुआ है। देखो आप यहाँ पे फॉलो ऑफ टी डैश क्या निकाला हुआ है, प्लस क्लोजिंग एंड डॉलर, प्लस क्लोजिंग एंड डॉलर, प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। तो अब हमको पासिंग टेबल में 3 एंट्री मिल गई, एम टी डैश प्लस एम टी डैश क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एम टी डैश डॉलर। इन तीनों में क्या क्या जाएगी, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, तीनों में आप टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन डाल दीजिए। देखिए टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन प्लस में चला गया, टी डैश प्लस में, उसके बाद टी डैश क्लोजिंग ब्रैकेट में भी यही चला जाएगा प्रोडक्शन, क्लोजिंग ब्रैकेट में भी यही चला जाएगा प्रोडक्शन। इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, और फिर टी डैश प्रोड्यूसिंग आई डॉलर में भी चला गया टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। ठीक है, ये चला गया। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला जो रूल है पासिंग टेबल के, इफ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा एंड डॉलर इज इन फॉलो ऑफ ए। अब आप देखो फॉलो ऑफ ए में डॉलर है, यहाँ पे देखो फॉलो ऑफ टी डैश में डॉलर है, यस है, और एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा। हमने ये वाला प्रोडक्शन लिया था, फॉलो ऑफ ए में डॉलर है, यानी कि फॉलो ऑफ ए क्या हुआ, फॉलो ऑफ ए यानी कि फॉलो ऑफ टी डैश में डॉलर है और एप्सिलॉन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में है, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में एप्सिलॉन है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अब आप देखो इस वाले केस में होगा एम ए डॉलर में, इस वाली लोकेशन में ए अल्फ़ा आप डालते हो, ए डॉलर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, टी डैश और डॉलर में ये प्रोडक्शन आ गया, तो ये उसमें कवर हो गया। ठीक है, और अब अगर कोई और एंट्रीज बची हो, हाँ एक लास्ट वाला प्रोडक्शन आपका बचा हुआ है, प्रोडक्शन क्या है, एफ प्रोड्यूसिंग ई एंड आई डी। अब इसको आप देखो, पहला रूल अप्लाई करो, यानी सेकंड रूल, ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा यानी कि फर्स्ट ऑफ ये निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ये बिल्कुल क्लियर है कि ये केवल पहला ही सिंबल होगा, ओपनिंग ब्रैकेट ई एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, इसका जो फर्स्ट होगा वो होगा केवल ओपनिंग ब्रैकेट। तो अब पार्सिंग टेबल में एंट्री क्या चली जाएगी, पार्सिंग टेबल में जाएगी एम एफ ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्या जाएगी, एफ प्रोड्यूसिंग ब्रैकेट में ई। पार्सिंग टेबल में एंट्री जाएगी एफ और ओपनिंग ब्रैकेट में, एफ और ओपनिंग ब्रैकेट में एफ प्रोड्यूसिंग इन ब्रैकेट ई। और वैसे ही ये दूसरा वाला जो प्रोडक्शन है, ये वाला प्रोडक्शन है एफ प्रोड्यूसिंग आईडी, इस पे भी आप चीज़ से चीज़ अप्लाई करोगी, आप इसका फर्स्ट निकालोगे तो आईडी आएगा। तो पार्सिंग टेबल में एंट्री क्या जाएगी, एफ आईडी में ये एक चला जाएगा प्रोडक्शन एफ प्रोड्यूसिंग आईडी। तो एफ आईडी इसमें चला जाएगा एफ प्रोड्यूसिंग आईडी। अब आप देख सकते हो ये पार्सिंग टेबल आपकी सारे हमने प्रोडक्शन कवर कर लिए, तो ये आपकी जो है फाइनली पार्सिंग टेबल ये बन गई। ये अब एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि देयर आर सम लोकेशंस विच आर ब्लैंक इन दिस पार्सिंग टेबल, दिस लोकेशन एंड सम लोकेशंस वी हैव प्रोडक्शंस।
So you need not worry. If the parsing table has been made accurately without any mistake, and if the grammar, this is the grammar that we took, if the grammar is fit for this top down parser, that is if it is LL1 grammar, then parsing table will look like this. There are certain entries which are blank entries. So if any parser tries to access this location, this is called error entry. That is where it is mentioned. No production in M capital A small a indicates error. यानी कि if these locations are tried to be accessed by the parser to parse any string, so it will be an error entry. So in that case the parsing program is at fault, or in that case maybe the parsing table is at fault. If the grammar is incorrect, parsing table entries may differ. And second thing is, you see, none of the location in which some entries or the productions are there have duplicate productions, more than one productions. That indicates that your parsing table is correctly made, because a duplicate entry into any table, any location of a table, simply indicates that it is an ambiguous parsing table, or that otherwise means grammar is ambiguous. So clearly your grammar is not ambiguous. That's why this parsing table has no duplicate entries in any of the locations. Okay, so this clearly has completed the construction of parsing table. We will now discuss how to parse a string using this parsing table and this grammar in the next slide or next video. Thank you very much.